میم آپ مجھے بتا دیتی میں بنا لیتی. آج بہت کریونگ ہو رہی تھی میرے چائنیز چاولوں کی. ماشاء اللہ سے خوشبو بھی بہت اچھی ہے, مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے. جی آپ کی میڈم کھانا ہی اتنا اچھا بناتی ہیں کہ اس کی خوشبو سے مجھے بھی بھوک لگ گئی. مجھے پوری امید ہے جس طرح اس کچن کی رونق لوٹی ہے میری زندگی کی بھی رونق بحال ہو جائے گی. آپ کے جتنے بھی کوک ہیں نا وہ مجھ سے بہت اچھا کھانا بناتے ہیں, اور آپ وہ انسان نہیں ہیں جس کے دل میں کھانے کی مہک سے جگہ بن سکے. وہ جگہ تو پہلے ہی بن چکی ہے اور رتی بھر ایڈجسٹمنٹ کی گنجائش نہیں ہے. روشنی میرا ایک دوست ہے, اس نے ہمیں تم دونوں کو ایک پارٹی میں بلایا. پارٹیز میں نہیں جاتی میں, آپ معذرت کر لیجیے گا میری طرف سے. میں تمہاری طرف سے اس سے معذرت کر دوں. کیوں؟ دیکھو روشنی, اس کی ویڈنگ اینیورسری ہے, اس نے بہت پیار سے وہ ایونٹ کیا ہے اور ہم دونوں کو انوائٹ کیا ہے, تو ہمیں جانا چاہیے. شام میں تیار رہنا پلیز. تم پھر سے اسے سپورٹ کرنے کا سوچ رہی ہو؟ سپورٹ کی کیا بات ہے؟ وہ دروازہ جو صرف سوال کرنے والوں کے لیے کھلتا تھا. ایک قدیم شہر میں ایک پرانا دروازہ تھا جو برسوں سے بند تھا. لوگ کہتے تھے کہ اس دروازے کے پیچھے ایسا کمرہ ہے جہاں ہر سوال کا جواب مل سکتا ہے. 14 سالہ عارف کو ہمیشہ نئی چیزیں جاننے کا شوق تھا. ایک دن وہ دروازے کے سامنے پہنچا. دروازے پر لکھا تھا, صرف سوال کرنے والا اندر آ سکتا ہے. عارف نے دستک دی. دروازہ نہیں کھلا. اس نے پوچھا, یہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ دروازہ ہلکا سا کھلا. اندر ایک لمبا ہال تھا جس کی دیواروں پر سینکڑوں دروازے بنے ہوئے تھے. ایک بزرگ نے کہا, ہر دروازہ ایک سوال کا راستہ ہے, لیکن تمہیں صرف وہی جواب ملے گا جس کی تلاش میں تم خود کوشش کرو گے. عارف نے پہلا دروازہ کھولا. اندر ایک ادھوری کتاب تھی, دوسرے میں ایک مشکل نقشہ, تیسرے میں ایک ٹوٹا ہوا آلہ. ہر جگہ اسے صرف اشارے ملے, مکمل جواب نہیں. عارف کئی دن ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا. آخرکار اسے احساس ہوا کہ وہ جس جواب کی تلاش کر رہا تھا وہ کسی ایک کتاب میں موجود نہیں تھا. مختلف اشاروں کو جوڑ کر اسے خود جواب بنانا تھا. اس نے آخری دروازہ کھولا. وہاں ایک آئینہ تھا. آئینے کے نیچے لکھا تھا, سب سے اچھا سوال وہ ہے جو تمہیں خود تلاش کرنے پر مجبور کرے. عارف مسکرایا اور باہر آ گیا. اس دن کے بعد وہ ہر مشکل کا فوری جواب ڈھونڈنے کے بجائے پہلے خود سوچنے لگا. سبق: سوال کرنا علم کی ابتدا ہے, لیکن جواب تک پہنچنے کے لیے غور, تحقیق اور کوشش بھی ضروری ہے. ستارہ. وہ دروازہ جو صرف سوال کرنے والوں کے لیے کھلتا تھا. ایک قدیم شہر میں ایک پرانا دروازہ تھا جو برسوں سے بند تھا. لوگ کہتے تھے کہ اس دروازے کے پیچھے ایسا کمرہ ہے جہاں ہر سوال کا جواب مل سکتا ہے. 14 سالہ عارف کو ہمیشہ نئی چیزیں جاننے کا شوق تھا. ایک دن وہ دروازے کے سامنے پہنچا. دروازے پر لکھا تھا, صرف سوال کرنے والا اندر آ سکتا ہے. عارف نے دستک دی. دروازہ نہیں کھلا. اس نے پوچھا, یہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ دروازہ ہلکا سا کھلا. اندر ایک لمبا ہال تھا جس کی دیواروں پر سینکڑوں دروازے بنے ہوئے تھے. ایک بزرگ نے کہا, ہر دروازہ ایک سوال کا راستہ ہے, لیکن تمہیں صرف وہی جواب ملے گا جس کی تلاش میں تم خود کوشش کرو گے. عارف نے پہلا دروازہ کھولا. اندر ایک ادھوری کتاب تھی, دوسرے میں ایک مشکل نقشہ, تیسرے میں ایک ٹوٹا ہوا آلہ. ہر جگہ اسے صرف اشارے ملے, مکمل جواب نہیں. عارف کئی دن ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا. آخرکار اسے احساس ہوا کہ وہ جس جواب کی تلاش کر رہا تھا وہ کسی ایک کتاب میں موجود نہیں تھا. مختلف اشاروں کو جوڑ کر اسے خود جواب بنانا تھا. اس نے آخری دروازہ کھولا. وہاں ایک آئینہ تھا. آئینے کے نیچے لکھا تھا, سب سے اچھا سوال وہ ہے جو تمہیں خود تلاش کرنے پر مجبور کرے. عارف مسکرایا اور باہر آ گیا. اس دن کے بعد وہ ہر مشکل کا فوری جواب ڈھونڈنے کے بجائے پہلے خود سوچنے لگا. سبق: سوال کرنا علم کی ابتدا ہے, لیکن جواب تک پہنچنے کے لیے غور, تحقیق اور کوشش بھی ضروری ہے. ستارہ. وہ دروازہ جو صرف سوال کرنے والوں کے لیے کھلتا تھا. ایک قدیم شہر میں ایک پرانا دروازہ تھا جو برسوں سے بند تھا. لوگ کہتے تھے کہ اس دروازے کے پیچھے ایسا کمرہ ہے جہاں ہر سوال کا جواب مل سکتا ہے. 14 سالہ عارف کو ہمیشہ نئی چیزیں جاننے کا شوق تھا. ایک دن وہ دروازے کے سامنے پہنچا. دروازے پر لکھا تھا, صرف سوال کرنے والا اندر آ سکتا ہے. عارف نے دستک دی. دروازہ نہیں کھلا. اس نے پوچھا, یہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟
दरवाज़ा हल्का सा खिला। अंदर एक लंबा हाल था जिसकी दीवारों पर सैकड़ों दरवाजे बने हुए थे। एक बुजुर्ग ने कहा, हर दरवाज़ा एक सवाल का रास्ता है, लेकिन तुम्हें सिर्फ वही जवाब मिलेगा जिसकी तलाश में तुम खुद कोशिश करोगे। आरिफ ने पहला दरवाज़ा खोला। अंदर एक अधूरी किताब थी, दूसरे में एक मुश्किल नक्शा, तीसरे में एक टूटा हुआ आला। हर जगह उसे सिर्फ इशारे मिले, मुकम्मल जवाब नहीं। आरिफ कई दिन इन चीज़ों को समझने की कोशिश करता रहा। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वो जिस जवाब की तलाश कर रहा था वो किसी एक किताब में मौजूद नहीं था। मुख्तलिफ इशारों को जोड़कर उसे खुद जवाब बनाना था। उसने आखिरी दरवाज़ा खोला। वहाँ एक आईना था। आईने के नीचे लिखा था, सबसे अच्छा सवाल वो है जो तुम्हें खुद तलाश करने पर मजबूर करे। आरिफ मुस्कुराया और बाहर आ गया। इस दिन के बाद वो हर मुश्किल का फौरी जवाब ढूंढने के बजाय पहले खुद सोचने लगा। सबक, सवाल करना इल्म की इब्तिदा है, लेकिन जवाब तक पहुंचने के लिए गौर, तहक़ीक़ और कोशिश भी ज़रूरी है। सितारा सितारा, वो दरवाज़ा जो सिर्फ सवाल करने वालों के लिए खुलता था। एक कदीम शहर में एक पुराना दरवाज़ा था जो बरसों से बंद था। लोग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे ऐसा कमरा है जहां हर सवाल का जवाब मिल सकता है। 14 साला आरिफ को हमेशा नई चीज़ें जानने का शौक था। एक दिन वो दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ सवाल करने वाला अंदर आ सकता है। आरिफ ने दस्तक दी। दरवाज़ा नहीं खिला। इसने पूछा, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? दरवाज़ा हल्का सा खिला। अंदर एक लंबा हाल था जिसकी दीवारों पर सैकड़ों दरवाजे बने हुए थे। एक बुजुर्ग ने कहा, हर दरवाज़ा एक सवाल का रास्ता है, लेकिन तुम्हें सिर्फ वही जवाब मिलेगा जिसकी तलाश में तुम खुद कोशिश करोगे। आरिफ ने पहला दरवाज़ा खोला। अंदर एक अधूरी किताब थी, दूसरे में एक मुश्किल नक्शा, तीसरे में एक टूटा हुआ आला। हर जगह उसे सिर्फ इशारे मिले, मुकम्मल जवाब नहीं। आरिफ कई दिन इन चीज़ों को समझने की कोशिश करता रहा। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वो जिस जवाब की तलाश कर रहा था वो किसी एक किताब में मौजूद नहीं था। मुख्तलिफ इशारों को जोड़कर उसे खुद जवाब बनाना था। उसने आखिरी दरवाज़ा खोला। वहाँ एक आईना था। आईने के नीचे लिखा था, सबसे अच्छा सवाल वो है जो तुम्हें खुद तलाश करने पर मजबूर करे। आरिफ मुस्कुराया और बाहर आ गया। इस दिन के बाद वो हर मुश्किल का फौरी जवाब ढूंढने के बजाय पहले खुद सोचने लगा। सबक, सवाल करना इल्म की इब्तिदा है, लेकिन जवाब तक पहुंचने के लिए गौर, तहक़ीक़ और कोशिश भी ज़रूरी है। सितारा सितारा, वो दरवाज़ा जो सिर्फ सवाल करने वालों के लिए खुलता था। एक कदीम शहर में एक पुराना दरवाज़ा था जो बरसों से बंद था। लोग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे ऐसा कमरा है जहां हर सवाल का जवाब मिल सकता है। 14 साला आरिफ को हमेशा नई चीज़ें जानने का शौक था। एक दिन वो दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ सवाल करने वाला अंदर आ सकता है। आरिफ ने दस्तक दी। दरवाज़ा नहीं खिला। इसने पूछा, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? दरवाज़ा हल्का सा खिला। अंदर एक लंबा हाल था जिसकी दीवारों पर सैकड़ों दरवाजे बने हुए थे। एक बुजुर्ग ने कहा, हर दरवाज़ा एक सवाल का रास्ता है, लेकिन तुम्हें सिर्फ वही जवाब मिलेगा जिसकी तलाश में तुम खुद कोशिश करोगे। आरिफ ने पहला दरवाज़ा खोला। अंदर एक अधूरी किताब थी, दूसरे में एक मुश्किल नक्शा, तीसरे में एक टूटा हुआ आला। हर जगह उसे सिर्फ इशारे मिले, मुकम्मल जवाब नहीं। आरिफ कई दिन इन चीज़ों को समझने की कोशिश करता रहा। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वो जिस जवाब की तलाश कर रहा था वो किसी एक किताब में मौजूद नहीं था। मुख्तलिफ इशारों को जोड़कर उसे खुद जवाब बनाना था। उसने आखिरी दरवाज़ा खोला। वहाँ एक आईना था। आईने के नीचे लिखा था, सबसे अच्छा सवाल वो है जो तुम्हें खुद तलाश करने पर मजबूर करे। आरिफ मुस्कुराया और बाहर आ गया। इस दिन के बाद वो हर मुश्किल का फौरी जवाब ढूंढने के बजाय पहले खुद सोचने लगा। सबक, सवाल करना इल्म की इब्तिदा है, लेकिन जवाब तक पहुंचने के लिए गौर, तहक़ीक़ और कोशिश भी ज़रूरी है। सितारा सितारा, वो दरवाज़ा जो सिर्फ सवाल करने वालों के लिए खुलता था। एक कदीम शहर में एक पुराना दरवाज़ा था जो बरसों से बंद था। लोग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे ऐसा कमरा है जहां हर सवाल का जवाब मिल सकता है। 14 साला आरिफ को हमेशा नई चीज़ें जानने का शौक था। एक दिन वो दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ सवाल करने वाला अंदर आ सकता है। आरिफ ने दस्तक दी। दरवाज़ा नहीं खिला। इसने पूछा, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? दरवाज़ा हल्का सा खिला। अंदर एक लंबा हाल था जिसकी दीवारों पर सैकड़ों दरवाजे बने हुए थे। एक बुजुर्ग ने कहा, हर दरवाज़ा एक सवाल का रास्ता है,
लेकिन तुम्हें सिर्फ वही जवाब मिलेगा जिसकी तलाश में तुम खुद कोशिश करोगे। आरिफ ने पहला दरवाज़ा खोला। अंदर एक अधूरी किताब थी, दूसरे में एक मुश्किल नक्शा, तीसरे में एक टूटा हुआ आला। हर जगह उसे सिर्फ इशारे मिले, मुकम्मल जवाब नहीं। आरिफ कई दिन इन चीज़ों को समझने की कोशिश करता रहा। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वो जिस जवाब की तलाश कर रहा था वो किसी एक किताब में मौजूद नहीं था। मुख्तलिफ इशारों को जोड़कर उसे खुद जवाब बनाना था। उसने आखिरी दरवाज़ा खोला। वहीं एक आईना था। आईने के नीचे लिखा था, सबसे अच्छा सवाल वो है जो तुम्हें खुद तलाश करने पर मजबूर करे। आरिफ मुस्कुराया और बाहर आ गया। इस दिन के बाद वो हर मुश्किल का फौरी जवाब ढूंढने के बजाय पहले खुद सोचने लगा। सबक: सवाल करना इल्म की इब्तिदा है, लेकिन जवाब तक पहुंचने के लिए गौर, तहकीक और कोशिश भी ज़रूरी है। सितारा सितारा, वो दरवाज़ा जो सिर्फ सवाल करने वालों के लिए खुलता था। एक कदीम शहर में एक पुराना दरवाज़ा था जो बरसों से बंद था। लोग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे ऐसा कमरा है जहां हर सवाल का जवाब मिल सकता है। 14 साला आरिफ को हमेशा नई चीज़ें जानने का शौक था। एक दिन वो दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ सवाल करने वाला अंदर आ सकता है। आरिफ ने दस्तक दी। दरवाज़ा नहीं खिला। इसने पूछा, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? दरवाज़ा हल्का सा खिला। अंदर एक लंबा हॉल था जिसकी दीवारों पर सैकड़ों दरवाजे बने हुए थे। एक बुजुर्ग ने कहा, हर दरवाज़ा एक सवाल का रास्ता है, लेकिन तुम्हें सिर्फ वही जवाब मिलेगा जिसकी तलाश में तुम खुद कोशिश करोगे। आरिफ ने पहला दरवाज़ा खोला। अंदर एक अधूरी किताब थी, दूसरे में एक मुश्किल नक्शा, तीसरे में एक टूटा हुआ आला। हर जगह उसे सिर्फ इशारे मिले, मुकम्मल जवाब नहीं। आरिफ कई दिन इन चीज़ों को समझने की कोशिश करता रहा। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वो जिस जवाब की तलाश कर रहा था वो किसी एक किताब में मौजूद नहीं था। मुख्तलिफ इशारों को जोड़कर उसे खुद जवाब बनाना था। उसने आखिरी दरवाज़ा खोला। वहीं एक आईना था। आईने के नीचे लिखा था, सबसे अच्छा सवाल वो है जो तुम्हें खुद तलाश करने पर मजबूर करे। आरिफ मुस्कुराया और बाहर आ गया। इस दिन के बाद वो हर मुश्किल का फौरी जवाब ढूंढने के बजाय पहले खुद सोचने लगा। सबक: सवाल करना इल्म की इब्तिदा है, लेकिन जवाब तक पहुंचने के लिए गौर, तहकीक और कोशिश भी ज़रूरी है। सितारा सितारा, वो दरवाज़ा जो सिर्फ सवाल करने वालों के लिए खुलता था। एक कदीम शहर में एक पुराना दरवाज़ा था जो बरसों से बंद था। लोग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे ऐसा कमरा है जहां हर सवाल का जवाब मिल सकता है। 14 साला आरिफ को हमेशा नई चीज़ें जानने का शौक था। एक दिन वो दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ सवाल करने वाला अंदर आ सकता है। आरिफ ने दस्तक दी। दरवाज़ा नहीं खिला। इसने पूछा, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? दरवाज़ा हल्का सा खिला। अंदर एक लंबा हॉल था जिसकी दीवारों पर सैकड़ों दरवाजे बने हुए थे। एक बुजुर्ग ने कहा, हर दरवाज़ा एक सवाल का रास्ता है, लेकिन तुम्हें सिर्फ वही जवाब मिलेगा जिसकी तलाश में तुम खुद कोशिश करोगे। आरिफ ने पहला दरवाज़ा खोला। अंदर एक अधूरी किताब थी, दूसरे में एक मुश्किल नक्शा, तीसरे में एक टूटा हुआ आला। हर जगह उसे सिर्फ इशारे मिले, मुकम्मल जवाब नहीं। आरिफ कई दिन इन चीज़ों को समझने की कोशिश करता रहा। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वो जिस जवाब की तलाश कर रहा था वो किसी एक किताब में मौजूद नहीं था। मुख्तलिफ इशारों को जोड़कर उसे खुद जवाब बनाना था। उसने आखिरी दरवाज़ा खोला। वहीं एक आईना था। आईने के नीचे लिखा था, सबसे अच्छा सवाल वो है जो तुम्हें खुद तलाश करने पर मजबूर करे। आरिफ मुस्कुराया और बाहर आ गया। इस दिन के बाद वो हर मुश्किल का फौरी जवाब ढूंढने के बजाय पहले खुद सोचने लगा। सबक: सवाल करना इल्म की इब्तिदा है, लेकिन जवाब तक पहुंचने के लिए गौर, तहकीक और कोशिश भी ज़रूरी है। सितारा सितारा, वो दरवाज़ा जो सिर्फ सवाल करने वालों के लिए खुलता था। एक कदीम शहर में एक पुराना दरवाज़ा था जो बरसों से बंद था। लोग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे ऐसा कमरा है जहां हर सवाल का जवाब मिल सकता है। 14 साला आरिफ को हमेशा नई चीज़ें जानने का शौक था। एक दिन वो दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ सवाल करने वाला अंदर आ सकता है। आरिफ ने दस्तक दी। दरवाज़ा नहीं खिला। इसने पूछा, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? दरवाज़ा हल्का सा खिला। अंदर एक लंबा हॉल था जिसकी दीवारों पर सैकड़ों दरवाजे बने हुए थे। एक बुजुर्ग ने कहा, हर दरवाज़ा एक सवाल का रास्ता है, लेकिन तुम्हें सिर्फ वही जवाब मिलेगा जिसकी तलाश में तुम खुद कोशिश करोगे। आरिफ ने पहला दरवाज़ा खोला। अंदर एक अधूरी किताब थी, दूसरे में एक मुश्किल नक्शा, तीसरे में एक टूटा हुआ आला।
हर जगह उसे सिर्फ इशारे मिले, मुकम्मल जवाब नहीं। आरिफ कई दिन इन चीज़ों को समझने की कोशिश करता रहा। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वो जिस जवाब की तलाश कर रहा था वो किसी एक किताब में मौजूद नहीं था। मुख्तलिफ इशारों को जोड़कर उसे खुद जवाब बनाना था। उसने आखिरी दरवाज़ा खोला। वहीं एक आईना था। आईने के नीचे लिखा था, सबसे अच्छा सवाल वो है जो तुम्हें खुद तलाश करने पर मजबूर करे। आरिफ मुस्कुराया और बाहर आ गया। इस दिन के बाद वो हर मुश्किल का फौरी जवाब ढूंढने के बजाय पहले खुद सोचने लगा। सबक, सवाल करना इल्म की इब्तिदा है, लेकिन जवाब तक पहुंचने के लिए गौर, तहकीक और कोशिश भी ज़रूरी है। सितारा सितारा, वो दरवाज़ा जो सिर्फ सवाल करने वालों के लिए खुलता था। एक कदीम शहर में एक पुराना दरवाज़ा था जो बरसों से बंद था। लोग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे ऐसा कमरा है जहां हर सवाल का जवाब मिल सकता है। 14 साला आरिफ को हमेशा नई चीज़ें जानने का शौक था। एक दिन वो दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ सवाल करने वाला अंदर आ सकता है। आरिफ ने दस्तक दी। दरवाज़ा नहीं खिला। इसने पूछा, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? दरवाज़ा हल्का सा खिला। अंदर एक लंबा हॉल था जिसकी दीवारों पर सैकड़ों दरवाजे बने हुए थे। एक बुजुर्ग ने कहा, हर दरवाज़ा एक सवाल का रास्ता है, लेकिन तुम्हें सिर्फ वही जवाब मिलेगा जिसकी तलाश में तुम खुद कोशिश करोगे। आरिफ ने पहला दरवाज़ा खोला। अंदर एक अधूरी किताब थी। दूसरे में एक मुश्किल नक्शा। तीसरे में एक टूटा हुआ आला। हर जगह उसे सिर्फ इशारे मिले, मुकम्मल जवाब नहीं। आरिफ कई दिन इन चीज़ों को समझने की कोशिश करता रहा। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वो जिस जवाब की तलाश कर रहा था वो किसी एक किताब में मौजूद नहीं था। मुख्तलिफ इशारों को जोड़कर उसे खुद जवाब बनाना था। उसने आखिरी दरवाज़ा खोला। वहीं एक आईना था। आईने के नीचे लिखा था, सबसे अच्छा सवाल वो है जो तुम्हें खुद तलाश करने पर मजबूर करे। आरिफ मुस्कुराया और बाहर आ गया। इस दिन के बाद वो हर मुश्किल का फौरी जवाब ढूंढने के बजाय पहले खुद सोचने लगा। सबक, सवाल करना इल्म की इब्तिदा है, लेकिन जवाब तक पहुंचने के लिए गौर, तहकीक और कोशिश भी ज़रूरी है। सितारा सितारा, वो दरवाज़ा जो सिर्फ सवाल करने वालों के लिए खुलता था। एक कदीम शहर में एक पुराना दरवाज़ा था जो बरसों से बंद था। लोग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे ऐसा कमरा है जहां हर सवाल का जवाब मिल सकता है। 14 साला आरिफ को हमेशा नई चीज़ें जानने का शौक था। एक दिन वो दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ सवाल करने वाला अंदर आ सकता है। आरिफ ने दस्तक दी। दरवाज़ा नहीं खिला। इसने पूछा, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? दरवाज़ा हल्का सा खिला। अंदर एक लंबा हॉल था जिसकी दीवारों पर सैकड़ों दरवाजे बने हुए थे। एक बुजुर्ग ने कहा, हर दरवाज़ा एक सवाल का रास्ता है, लेकिन तुम्हें सिर्फ वही जवाब मिलेगा जिसकी तलाश में तुम खुद कोशिश करोगे। आरिफ ने पहला दरवाज़ा खोला। अंदर एक अधूरी किताब थी। दूसरे में एक मुश्किल नक्शा। तीसरे में एक टूटा हुआ आला। हर जगह उसे सिर्फ इशारे मिले, मुकम्मल जवाब नहीं। आरिफ कई दिन इन चीज़ों को समझने की कोशिश करता रहा। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वो जिस जवाब की तलाश कर रहा था वो किसी एक किताब में मौजूद नहीं था। मुख्तलिफ इशारों को जोड़कर उसे खुद जवाब बनाना था। उसने आखिरी दरवाज़ा खोला। वहीं एक आईना था। आईने के नीचे लिखा था, सबसे अच्छा सवाल वो है जो तुम्हें खुद तलाश करने पर मजबूर करे। आरिफ मुस्कुराया और बाहर आ गया। इस दिन के बाद वो हर मुश्किल का फौरी जवाब ढूंढने के बजाय पहले खुद सोचने लगा। सबक, सवाल करना इल्म की इब्तिदा है, लेकिन जवाब तक पहुंचने के लिए गौर, तहकीक और कोशिश भी ज़रूरी है। सितारा सितारा, वो दरवाज़ा जो सिर्फ सवाल करने वालों के लिए खुलता था। एक कदीम शहर में एक पुराना दरवाज़ा था जो बरसों से बंद था। लोग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे ऐसा कमरा है जहां हर सवाल का जवाब मिल सकता है। 14 साला आरिफ को हमेशा नई चीज़ें जानने का शौक था। एक दिन वो दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ सवाल करने वाला अंदर आ सकता है। आरिफ ने दस्तक दी। दरवाज़ा नहीं खिला। इसने पूछा, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? दरवाज़ा हल्का सा खिला। अंदर एक लंबा हॉल था जिसकी दीवारों पर सैकड़ों दरवाजे बने हुए थे। एक बुजुर्ग ने कहा, हर दरवाज़ा एक सवाल का रास्ता है, लेकिन तुम्हें सिर्फ वही जवाब मिलेगा जिसकी तलाश में तुम खुद कोशिश करोगे। आरिफ ने पहला दरवाज़ा खोला। अंदर एक अधूरी किताब थी। दूसरे में एक मुश्किल नक्शा। तीसरे में एक टूटा हुआ आला। हर जगह उसे सिर्फ इशारे मिले, मुकम्मल जवाब नहीं। आरिफ कई दिन इन चीज़ों को समझने की कोशिश करता रहा। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वो जिस जवाब की तलाश कर रहा था वो किसी एक किताब में मौजूद नहीं था।
मुख्तलिफ इशारों को जोड़कर उसे खुद जवाब बनाना था। उसने आखिरी दरवाज़ा खोला। वहीं एक आईना था। आईने के नीचे लिखा था, सबसे अच्छा सवाल वो है जो तुम्हें खुद तलाश करने पर मजबूर करे। आरिफ मुस्कुराया और बाहर आ गया। इस दिन के बाद वो हर मुश्किल का फौरी जवाब ढूंढने के बजाय पहले खुद सोचने लगा। सबक, सवाल करना इल्म की इब्तिदा है, लेकिन जवाब तक पहुंचने के लिए गौर, तहकीक और कोशिश भी ज़रूरी है। सितारा सितारा, वो दरवाज़ा जो सिर्फ सवाल करने वालों के लिए खुलता था। एक कदीम शहर में एक पुराना दरवाज़ा था जो बरसों से बंद था। लोग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे ऐसा कमरा है जहां हर सवाल का जवाब मिल सकता है। 14 साला आरिफ को हमेशा नई चीज़ें जानने का शौक था। एक दिन वो दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ सवाल करने वाला अंदर आ सकता है। आरिफ ने दस्तक दी। दरवाज़ा नहीं खिला। इसने पूछा, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? दरवाज़ा हल्का सा खिला। अंदर एक लंबा हाल था जिसकी दीवारों पर सैकड़ों दरवाजे बने हुए थे। एक बुजुर्ग ने कहा, हर दरवाज़ा एक सवाल का रास्ता है, लेकिन तुम्हें सिर्फ वही जवाब मिलेगा जिसकी तलाश में तुम खुद कोशिश करोगे। आरिफ ने पहला दरवाज़ा खोला। अंदर एक अधूरी किताब थी। दूसरे में एक मुश्किल नक्शा। तीसरे में एक टूटा हुआ आला। हर जगह उसे सिर्फ इशारे मिले, मुकम्मल जवाब नहीं। आरिफ कई दिन इन चीज़ों को समझने की कोशिश करता रहा। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वो जिस जवाब की तलाश कर रहा था वो किसी एक किताब में मौजूद नहीं था। मुख्तलिफ इशारों को जोड़कर उसे खुद जवाब बनाना था। उसने आखिरी दरवाज़ा खोला। वहीं एक आईना था। आईने के नीचे लिखा था, सबसे अच्छा सवाल वो है जो तुम्हें खुद तलाश करने पर मजबूर करे। आरिफ मुस्कुराया और बाहर आ गया। इस दिन के बाद वो हर मुश्किल का फौरी जवाब ढूंढने के बजाय पहले खुद सोचने लगा। सबक, सवाल करना इल्म की इब्तिदा है, लेकिन जवाब तक पहुंचने के लिए गौर, तहकीक और कोशिश भी ज़रूरी है। सितारा सितारा, वो दरवाज़ा जो सिर्फ सवाल करने वालों के लिए खुलता था। एक कदीम शहर में एक पुराना दरवाज़ा था जो बरसों से बंद था। लोग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे ऐसा कमरा है जहां हर सवाल का जवाब मिल सकता है। 14 साला आरिफ को हमेशा नई चीज़ें जानने का शौक था। एक दिन वो दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ सवाल करने वाला अंदर आ सकता है। आरिफ ने दस्तक दी। दरवाज़ा नहीं खिला। इसने पूछा, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? दरवाज़ा हल्का सा खिला। अंदर एक लंबा हाल था जिसकी दीवारों पर सैकड़ों दरवाजे बने हुए थे। एक बुजुर्ग ने कहा, हर दरवाज़ा एक सवाल का रास्ता है, लेकिन तुम्हें सिर्फ वही जवाब मिलेगा जिसकी तलाश में तुम खुद कोशिश करोगे। आरिफ ने पहला दरवाज़ा खोला। अंदर एक अधूरी किताब थी। दूसरे में एक मुश्किल नक्शा। तीसरे में एक टूटा हुआ आला। हर जगह उसे सिर्फ इशारे मिले, मुकम्मल जवाब नहीं। आरिफ कई दिन इन चीज़ों को समझने की कोशिश करता रहा। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वो जिस जवाब की तलाश कर रहा था वो किसी एक किताब में मौजूद नहीं था। मुख्तलिफ इशारों को जोड़कर उसे खुद जवाब बनाना था। उसने आखिरी दरवाज़ा खोला। वहीं एक आईना था। आईने के नीचे लिखा था, सबसे अच्छा सवाल वो है जो तुम्हें खुद तलाश करने पर मजबूर करे। आरिफ मुस्कुराया और बाहर आ गया। इस दिन के बाद वो हर मुश्किल का फौरी जवाब ढूंढने के बजाय पहले खुद सोचने लगा। सबक, सवाल करना इल्म की इब्तिदा है, लेकिन जवाब तक पहुंचने के लिए गौर, तहकीक और कोशिश भी ज़रूरी है। सितारा सितारा, वो दरवाज़ा जो सिर्फ सवाल करने वालों के लिए खुलता था। एक कदीम शहर में एक पुराना दरवाज़ा था जो बरसों से बंद था। लोग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे ऐसा कमरा है जहां हर सवाल का जवाब मिल सकता है। 14 साला आरिफ को हमेशा नई चीज़ें जानने का शौक था। एक दिन वो दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ सवाल करने वाला अंदर आ सकता है। आरिफ ने दस्तक दी। दरवाज़ा नहीं खिला। इसने पूछा, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? दरवाज़ा हल्का सा खिला। अंदर एक लंबा हाल था जिसकी दीवारों पर सैकड़ों दरवाजे बने हुए थे। एक बुजुर्ग ने कहा, हर दरवाज़ा एक सवाल का रास्ता है, लेकिन तुम्हें सिर्फ वही जवाब मिलेगा जिसकी तलाश में तुम खुद कोशिश करोगे। आरिफ ने पहला दरवाज़ा खोला। अंदर एक अधूरी किताब थी। दूसरे में एक मुश्किल नक्शा। तीसरे में एक टूटा हुआ आला। हर जगह उसे सिर्फ इशारे मिले, मुकम्मल जवाब नहीं। आरिफ कई दिन इन चीज़ों को समझने की कोशिश करता रहा। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वो जिस जवाब की तलाश कर रहा था वो किसी एक किताब में मौजूद नहीं था। मुख्तलिफ इशारों को जोड़कर उसे खुद जवाब बनाना था। उसने आखिरी दरवाज़ा खोला। वहीं एक आईना था। आईने के नीचे लिखा था, सबसे अच्छा सवाल वो है जो तुम्हें खुद तलाश करने पर मजबूर करे।
आरिफ मुस्कुराया और बाहर आ गया। इस दिन के बाद वो हर मुश्किल का फौरी जवाब ढूंढने के बजाय पहले खुद सोचने लगा। सबक, सवाल करना इल्म की इब्तिदा है, लेकिन जवाब तक पहुंचने के लिए गौर, तहकीक और कोशिश भी ज़रूरी है। सितारा सितारा, वो दरवाज़ा जो सिर्फ सवाल करने वालों के लिए खुलता था। एक कदीम शहर में एक पुराना दरवाज़ा था जो बरसों से बंद था। लोग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे ऐसा कमरा है जहां हर सवाल का जवाब मिल सकता है। 14 साला आरिफ को हमेशा नई चीज़ें जानने का शौक था। एक दिन वो दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ सवाल करने वाला अंदर आ सकता है। आरिफ ने दस्तक दी। दरवाज़ा नहीं खिला। इसने पूछा, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? दरवाज़ा हल्का सा खिला। अंदर एक लंबा हाल था जिसकी दीवारों पर सैकड़ों दरवाजे बने हुए थे। एक बुजुर्ग ने कहा, हर दरवाज़ा एक सवाल का रास्ता है, लेकिन तुम्हें सिर्फ वही जवाब मिलेगा जिसकी तलाश में तुम खुद कोशिश करोगे। आरिफ ने पहला दरवाज़ा खोला। अंदर एक अधूरी किताब थी, दूसरे में एक मुश्किल नक्शा, तीसरे में एक टूटा हुआ आला। हर जगह उसे सिर्फ इशारे मिले, मुकम्मल जवाब नहीं। आरिफ कई दिन इन चीज़ों को समझने की कोशिश करता रहा। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वो जिस जवाब की तलाश कर रहा था वो किसी एक किताब में मौजूद नहीं था। मुख्तलिफ इशारों को जोड़कर उसे खुद जवाब बनाना था। उसने आखिरी दरवाज़ा खोला। वहाँ एक आईना था। आईने के नीचे लिखा था, सबसे अच्छा सवाल वो है जो तुम्हें खुद तलाश करने पर मजबूर करे। आरिफ मुस्कुराया और बाहर आ गया। इस दिन के बाद वो हर मुश्किल का फौरी जवाब ढूंढने के बजाय पहले खुद सोचने लगा। सबक, सवाल करना इल्म की इब्तिदा है, लेकिन जवाब तक पहुंचने के लिए गौर, तहकीक और कोशिश भी ज़रूरी है। सितारा सितारा, वो दरवाज़ा जो सिर्फ सवाल करने वालों के लिए खुलता था। एक कदीम शहर में एक पुराना दरवाज़ा था जो बरसों से बंद था। लोग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे ऐसा कमरा है जहां हर सवाल का जवाब मिल सकता है। 14 साला आरिफ को हमेशा नई चीज़ें जानने का शौक था। एक दिन वो दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ सवाल करने वाला अंदर आ सकता है। आरिफ ने दस्तक दी। दरवाज़ा नहीं खिला। इसने पूछा, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? दरवाज़ा हल्का सा खिला। अंदर एक लंबा हाल था जिसकी दीवारों पर सैकड़ों दरवाजे बने हुए थे। एक बुजुर्ग ने कहा, हर दरवाज़ा एक सवाल का रास्ता है, लेकिन तुम्हें सिर्फ वही जवाब मिलेगा जिसकी तलाश में तुम खुद कोशिश करोगे। आरिफ ने पहला दरवाज़ा खोला। अंदर एक अधूरी किताब थी, दूसरे में एक मुश्किल नक्शा, तीसरे में एक टूटा हुआ आला। हर जगह उसे सिर्फ इशारे मिले, मुकम्मल जवाब नहीं। आरिफ कई दिन इन चीज़ों को समझने की कोशिश करता रहा। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वो जिस जवाब की तलाश कर रहा था वो किसी एक किताब में मौजूद नहीं था। मुख्तलिफ इशारों को जोड़कर उसे खुद जवाब बनाना था। उसने आखिरी दरवाज़ा खोला। वहाँ एक आईना था। आईने के नीचे लिखा था, सबसे अच्छा सवाल वो है जो तुम्हें खुद तलाश करने पर मजबूर करे। आरिफ मुस्कुराया और बाहर आ गया। इस दिन के बाद वो हर मुश्किल का फौरी जवाब ढूंढने के बजाय पहले खुद सोचने लगा। सबक, सवाल करना इल्म की इब्तिदा है, लेकिन जवाब तक पहुंचने के लिए गौर, तहकीक और कोशिश भी ज़रूरी है। सितारा सितारा, वो दरवाज़ा जो सिर्फ सवाल करने वालों के लिए खुलता था। एक कदीम शहर में एक पुराना दरवाज़ा था जो बरसों से बंद था। लोग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे ऐसा कमरा है जहां हर सवाल का जवाब मिल सकता है। 14 साला आरिफ को हमेशा नई चीज़ें जानने का शौक था। एक दिन वो दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ सवाल करने वाला अंदर आ सकता है। आरिफ ने दस्तक दी। दरवाज़ा नहीं खिला। इसने पूछा, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? दरवाज़ा हल्का सा खिला। अंदर एक लंबा हाल था जिसकी दीवारों पर सैकड़ों दरवाजे बने हुए थे। एक बुजुर्ग ने कहा, हर दरवाज़ा एक सवाल का रास्ता है, लेकिन तुम्हें सिर्फ वही जवाब मिलेगा जिसकी तलाश में तुम खुद कोशिश करोगे। आरिफ ने पहला दरवाज़ा खोला। अंदर एक अधूरी किताब थी, दूसरे में एक मुश्किल नक्शा, तीसरे में एक टूटा हुआ आला। हर जगह उसे सिर्फ इशारे मिले, मुकम्मल जवाब नहीं। आरिफ कई दिन इन चीज़ों को समझने की कोशिश करता रहा। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वो जिस जवाब की तलाश कर रहा था वो किसी एक किताब में मौजूद नहीं था। मुख्तलिफ इशारों को जोड़कर उसे खुद जवाब बनाना था। उसने आखिरी दरवाज़ा खोला। वहाँ एक आईना था। आईने के नीचे लिखा था, सबसे अच्छा सवाल वो है जो तुम्हें खुद तलाश करने पर मजबूर करे। आरिफ मुस्कुराया और बाहर आ गया। इस दिन के बाद वो हर मुश्किल का फौरी जवाब ढूंढने के बजाय पहले खुद सोचने लगा। सबक, सवाल करना इल्म की इब्तिदा है, लेकिन जवाब तक पहुंचने के लिए गौर, तहकीक और कोशिश भी ज़रूरी है।
सितारा सितारा, वो दरवाज़ा जो सिर्फ सवाल करने वालों के लिए खुलता था। एक कदीम शहर में एक पुराना दरवाज़ा था जो बरसों से बंद था। लोग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे ऐसा कमरा है जहां हर सवाल का जवाब मिल सकता है। 14 साला आरिफ को हमेशा नई चीज़ें जानने का शौक था। एक दिन वो दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ सवाल करने वाला अंदर आ सकता है। आरिफ ने दस्तक दी। दरवाज़ा नहीं खिला। इसने पूछा, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? दरवाज़ा हल्का सा खिला। अंदर एक लंबा हॉल था जिसकी दीवारों पर सैकड़ों दरवाजे बने हुए थे। एक बुजुर्ग ने कहा, हर दरवाज़ा एक सवाल का रास्ता है, लेकिन तुम्हें सिर्फ वही जवाब मिलेगा जिसकी तलाश में तुम खुद कोशिश करोगे। आरिफ ने पहला दरवाज़ा खोला। अंदर एक अधूरी किताब थी, दूसरे में एक मुश्किल नक्शा, तीसरे में एक टूटा हुआ आला। हर जगह उसे सिर्फ इशारे मिले, मुकम्मल जवाब नहीं। आरिफ कई दिन इन चीज़ों को समझने की कोशिश करता रहा। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वो जिस जवाब की तलाश कर रहा था वो किसी एक किताब में मौजूद नहीं था। मुख्तलिफ इशारों को जोड़कर उसे खुद जवाब बनाना था। उसने आखिरी दरवाज़ा खोला। वहाँ एक आईना था। आईने के नीचे लिखा था, सबसे अच्छा सवाल वो है जो तुम्हें खुद तलाश करने पर मजबूर करे। आरिफ मुस्कुराया और बाहर आ गया। इस दिन के बाद वो हर मुश्किल का फौरी जवाब ढूंढने के बजाय पहले खुद सोचने लगा। सबक, सवाल करना इल्म की इब्तिदा है, लेकिन जवाब तक पहुंचने के लिए गौर, तहक़ीक़ और कोशिश भी ज़रूरी है। सितारा सितारा, वो दरवाज़ा जो सिर्फ सवाल करने वालों के लिए खुलता था। एक कदीम शहर में एक पुराना दरवाज़ा था जो बरसों से बंद था। लोग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे ऐसा कमरा है जहां हर सवाल का जवाब मिल सकता है। 14 साला आरिफ को हमेशा नई चीज़ें जानने का शौक था। एक दिन वो दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ सवाल करने वाला अंदर आ सकता है। आरिफ ने दस्तक दी। दरवाज़ा नहीं खिला। इसने पूछा, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? दरवाज़ा हल्का सा खिला। अंदर एक लंबा हॉल था जिसकी दीवारों पर सैकड़ों दरवाजे बने हुए थे। एक बुजुर्ग ने कहा, हर दरवाज़ा एक सवाल का रास्ता है, लेकिन तुम्हें सिर्फ वही जवाब मिलेगा जिसकी तलाश में तुम खुद कोशिश करोगे। आरिफ ने पहला दरवाज़ा खोला। अंदर एक अधूरी किताब थी, दूसरे में एक मुश्किल नक्शा, तीसरे में एक टूटा हुआ आला। हर जगह उसे सिर्फ इशारे मिले, मुकम्मल जवाब नहीं। आरिफ कई दिन इन चीज़ों को समझने की कोशिश करता रहा। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वो जिस जवाब की तलाश कर रहा था वो किसी एक किताब में मौजूद नहीं था। मुख्तलिफ इशारों को जोड़कर उसे खुद जवाब बनाना था। उसने आखिरी दरवाज़ा खोला। वहाँ एक आईना था। आईने के नीचे लिखा था, सबसे अच्छा सवाल वो है जो तुम्हें खुद तलाश करने पर मजबूर करे। आरिफ मुस्कुराया और बाहर आ गया। इस दिन के बाद वो हर मुश्किल का फौरी जवाब ढूंढने के बजाय पहले खुद सोचने लगा। सबक, सवाल करना इल्म की इब्तिदा है, लेकिन जवाब तक पहुंचने के लिए गौर, तहक़ीक़ और कोशिश भी ज़रूरी है। सितारा सितारा, वो दरवाज़ा जो सिर्फ सवाल करने वालों के लिए खुलता था। एक कदीम शहर में एक पुराना दरवाज़ा था जो बरसों से बंद था। लोग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे ऐसा कमरा है जहां हर सवाल का जवाब मिल सकता है। 14 साला आरिफ को हमेशा नई चीज़ें जानने का शौक था। एक दिन वो दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ सवाल करने वाला अंदर आ सकता है। आरिफ ने दस्तक दी। दरवाज़ा नहीं खिला। इसने पूछा, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? दरवाज़ा हल्का सा खिला। अंदर एक लंबा हॉल था जिसकी दीवारों पर सैकड़ों दरवाजे बने हुए थे। एक बुजुर्ग ने कहा, हर दरवाज़ा एक सवाल का रास्ता है, लेकिन तुम्हें सिर्फ वही जवाब मिलेगा जिसकी तलाश में तुम खुद कोशिश करोगे। आरिफ ने पहला दरवाज़ा खोला। अंदर एक अधूरी किताब थी, दूसरे में एक मुश्किल नक्शा, तीसरे में एक टूटा हुआ आला। हर जगह उसे सिर्फ इशारे मिले, मुकम्मल जवाब नहीं। आरिफ कई दिन इन चीज़ों को समझने की कोशिश करता रहा। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वो जिस जवाब की तलाश कर रहा था वो किसी एक किताब में मौजूद नहीं था। मुख्तलिफ इशारों को जोड़कर उसे खुद जवाब बनाना था। उसने आखिरी दरवाज़ा खोला। वहाँ एक आईना था। आईने के नीचे लिखा था, सबसे अच्छा सवाल वो है जो तुम्हें खुद तलाश करने पर मजबूर करे। आरिफ मुस्कुराया और बाहर आ गया। इस दिन के बाद वो हर मुश्किल का फौरी जवाब ढूंढने के बजाय पहले खुद सोचने लगा। सबक, सवाल करना इल्म की इब्तिदा है, लेकिन जवाब तक पहुंचने के लिए गौर, तहक़ीक़ और कोशिश भी ज़रूरी है। सितारा सितारा, वो दरवाज़ा जो सिर्फ सवाल करने वालों के लिए खुलता था। एक कदीम शहर में एक पुराना दरवाज़ा था जो बरसों से बंद था। लोग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे ऐसा कमरा है जहां हर सवाल का जवाब मिल सकता है।
14 साला आरिफ को हमेशा नई चीजें जानने का शौक था। एक दिन वो दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ सवाल करने वाला अंदर आ सकता है। आरिफ ने दस्तक दी। दरवाजा नहीं खिला। इसने पूछा, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? दरवाजा हल्का सा खिला। अंदर एक लंबा हॉल था जिसकी दीवारों पर सैकड़ों दरवाजे बने हुए थे। एक बुजुर्ग ने कहा, हर दरवाजा एक सवाल का रास्ता है, लेकिन तुम्हें सिर्फ वही जवाब मिलेगा जिसकी तलाश में तुम खुद कोशिश करोगे। आरिफ ने पहला दरवाज़ा खोला। अंदर एक अधूरी किताब थी, दूसरे में एक मुश्किल नक्शा, तीसरे में एक टूटा हुआ आला। हर जगह उसे सिर्फ इशारे मिले, मुकम्मल जवाब नहीं। आरिफ कई दिन इन चीज़ों को समझने की कोशिश करता रहा। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वो जिस जवाब